Two Troubles by Arundhati Venkatesh. Kiran was grinning widely. He was missing a tooth. There was a black hole where the tooth had been. That's when it struck Pushkin. A gap Jatin tooth had fallen long ago. Then Sachin and Nitin lost a teeth each and now Kiran. So they all had gaps, only he didn't. Pushkin suddenly felt all alone. You can be a member of the Gap Club once your tooth falls, Nitin mumbled. Yes, you will have to wait till then, Kiran said. Pushkin wondered if he could make this tooth fall quickly. He remembered what his grandmother had said. Hatha would not eat the murku and chikki she made because he was scared he would lose the few teeth he had. Pushkin could ask Pati to make a murku and chikki for him. Even as Pushkin was thinking, Kiran announced Gap Club members assemble at the playground. Sachin woke up with a jolt. Why? Jatin had challenged the fourth standard to a football match. What? Said Pushkin. They are good. We will show them. They will go home with their tails between their legs. Kiran was confident. Do the fourth standards have tails? Jatin stretched his head. It's just an expression. It means they will be shamed, Nitin said. But we need a real football to practice. If we had a football, we would beat them easily. How will we get one? Jatin stretched his head harder. Why did you challenge them when you know we don't even have football? Sachin asked. They said we were babies. I told them we would see who was a baby cry. Jatin stretched some more. All we need is a football. Pushkin has a brain wave. If you let me join the Gap Club now, I will ask Query for a football when my tooth falls, he said. All eyes were now on Pushkin or his teeth to be precise. All except Sachin's. He had gone back to sleep. We need to get Pushkin's teeth to fall, Kiran said, but how? Idea, boxing. Jatin pumped his fist in the air. I will just knock your tooth off. I have broken my teeth, Jatin assured him. Pushkin took 2 steps back to be safe. Sachin, who was awake again, spoke. When my tooth kept shaking but didn't pull, dentist tied around it and pulled. Out it came, easy peasy lemon squeezy. Before Pushkin could protest, Jatin pulled out a piece of thread that was dangling from his trouser and lost it around Pushkin's front teeth. Kiran stepped forward. Here, all of you told. At the count of their 3, pull. Sachin and Nitin took position. Kiran called out, 1, 2. The 4 boys heaved and tugged the thread. 2 seconds later, the thread fell to pieces. The boys landed in a heap on the floor. Pushkin fell on the top of them. Moo, moo, the sound came from the deep below. Had Jatin turned into a cow? Move! It was Jatin's muffled voice. Pushkin finally managed to scramble to his feet. The boys stood up one by one. I know what the problem is, Jatin said angrily. Your teeth are so strong they just won't fail. How's that possible? Kiran was thinking aloud. Easy. Prehistoric creation that roamed lost their teeth like dinosaurs. Their teeth have been found as fossil. Some people were born with teeth. Napoleon was, but I haven't read of anyone whose teeth never fell. Jatin butted in. Maybe Pushkin is an alien. His teeth will never fall. Then he stretched his head and added, we could hammer it out. Pushkin turned tail and ran.
ट्रूथ ट्रबल नाम की इस स्टोरी को अरुंधति वेंकटेश ने लिखा है, हिंदी में सुनते हैं। किरण है जोर जोर से हंस रहा था, उसका भी दांत गिर गया था और दांत गिरने के कारण वहाँ पे गैप बन गया था और यही पुष्किन के लिए प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि क्लास में जैसे जतिन है उसका भी दांत गिर गया था बहुत पहले, और सचिन है, नितिन है, उनका भी दांत गिर गया था, और अभी किरण, इन सबके दांत गिरने के कारण वहाँ पे गैप बन गया था। लेकिन पुष्किन का अभी तक ऐसा एक भी दांत गिरा हुआ नहीं था और गैप भी बना हुआ नहीं था। तो ये लोगों ने अपना गैप ग्रुप बना लिया था और बेचारा पुष्किन अलग ही था, तो वो उसे चिढ़ा रहे थे, जब तक तू हमारे ग्रुप में नहीं आएगा तब तक, मतलब तेरा दांत नहीं गिरेगा तब तक नहीं। तो पुष्किन को कुछ भी करके अपना दांत गिराना था, लेकिन कैसे गिराना है। तभी उसे याद आया कि उसकी जो दादी थी उसने बोला था कि अगर वो चकली और चिक्की खाएगा तो जल्दी उसके दांत गिर जाएंगे, और तभी उसे लग रहा था कि अभी वो अग्गी के अभी घर जाके वो अपनी दादी से बोलेगा कि जल्दी से चकली और चिक्की बना लो ताकि मैं वो खाऊं और मेरा दांत गिर जाए। वो सोच ही रहा था, तभी किरण ने अनाउंस कर दिया कि गैप प्लेयर जो है वो जल्दी से ग्राउंड पे आ जाओ, क्योंकि सचिन जो सोया हुआ था वो बोला क्यों आ जाए। जतिन ने एक चैलेंज दिया था 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को फुटबॉल मैच के लिए, लेकिन ऐसे किया पुष्किन ने पूछा। तभी उसने बताना शुरू कर दिया कि हम उनको बताएंगे कि उनको घर ऐसी दुम है ना, पैर में डाल के जाना पड़ेगा, किरण ने बोला। तो किरण का ये सुनने के बाद जतिन ने अपने हेड को स्क्रैच किया, मतलब खुजलाया और बोला 4th स्टैंडर्ड के बच्चे और टेल। तो अरे पगले, इसका मतलब ये है कि उन्हें शर्म आएगी। अरे ये तो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो क्या करें, अभी प्रैक्टिस करने के लिए फुटबॉल भी तो होना चाहिए, फुटबॉल ही नहीं है तो कैसे करेंगे। जतिन ने फिर अपना जो सा है वो खुजलाया और बोले अगर हमारे पास एक फुटबॉल होता तो। तभी सचिन उसे बोला अगर तुम्हें पता था कि हमारे पास फुटबॉल भी नहीं है तो मैच को चैलेंज करने की क्या जरूरत थी। तो ये बोला कि हमें उन्होंने बेबीज करके चिढ़ाया है, मुझे दिखाना है कि कौन बेबी है और कौन बड़ा है। जतिन ने फिर ऐसे बोलने के बाद अपने हेड को खुजलाना शुरू कर दिया। तो हमें अभी फुटबॉल की ज़रूरत है। पुष्किन जो है ये, इसका दिमाग बहुत तेज था। वो बोला अगर तुम मुझे मदद करने के लिए तैयार हो गया ग्रुप में लेने के लिए तो मैं अपने टीम से कुछ बात कर सकता हूँ। हाँ तो चलो इसका दांत तोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाके ये हमारे गैप में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। सचिन जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड नहीं है, वो सो गया। अभी इसका दांत तोड़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक काम करते हैं। किरण बोला कैसे तोड़ेंगे। तो जतिन बोला मुझे पता है, बॉक्सिंग अगर मैं ऐसे जोर से इसके मुंह पे मारूंगा तो दांत टूट ही जाएगा, बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे तोड़ा हुआ है। जतिन ने ऐसे ही हवा में अपना हाथ उठाया और पुष्किन जो है वो डर के बेचारा 2 कदम पीछे चला गया था सेफ बनने के लिए। तभी सचिन जो है अब इंटरेस्ट से वो उठ के बोला अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा दांत जब हिल रहा था तब डॉक्टर ने एक जो थ्रेड है वो अंदर डाल के उसको जोर से खींचा था, तब जाके मेरा दांत निकल गया था, तुम यही क्यों नहीं करते। तभी जतिन ने अपने पैंट का जो एक थ्रेड था वो निकल रहा था उसे खींच के दांतों के अंदर घुसा दिया और वो अभी बोला चलो सबके सब तीनों चारों मदद करने आ जाओ। और तभी सारे बॉयज वहां पे इकट्ठा हुए, उन्होंने तीनों ने 4 बच्चों ने वो टाइट से पकड़ लिया था। पुष्किन बेचारा खड़ा था और 1 2 3 एक साथ खींचना ऐसे बोल के जोर जोर से खींचा और 1-2 सेकंड के बाद थ्रेड टूट गया। जैसे थ्रेड टूटा तो चारों बच्चे धड़ांग से और उनके ऊपर पुष्किन उसके ऊपर गिरा। तब जतिन जोर जोर से चिल्लाने लगा मुंह। अरे ये क्या हो गया, ये गाँव तो नहीं बन गया है जतिन। तभी वो जोर से बोला अरे मूव, उठो यार उठो। पुष्किन तभी कैसे तो उठ गया। उठने के बाद एक एक करके चारों बच्चे भी वहां से उठ के उसके तरफ देखने लगे थे। तो प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता है कैसे क्या करना है। पता है तुम्हारे दांत जो है ना बहुत स्ट्रांग है और वो जल्दी टूटेंगे नहीं। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, किरण ने बोला। अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैंने सुना है पहले के जमाने में जो एनिमल्स थे ना उनके दांत नीचे गिरे हुए थे, जैसे कि डायनासोर देखो। हाँ बराबर है, और वो अभी तक वैसे की वैसे है। तो नेपोलियन जो है ये तो दांत के साथ ही पैदा हुआ था, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं जिसका दांत ही नहीं गिरा हुआ है। मुझे लगता है ये पुष्किन जो है ये एलियन हो सकता है और इसीलिए उसका दांत नहीं गिरता है। ऐसे बोल के जतिन ने फिर से अपने बालों को सर को खुजलाना शुरू कर दिया। एक करते हैमर लाते और पुष्कर जोर से वहां से भागा। तो ये पूरी स्टोरी आपने सुन ली है।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।